जो mainly जो सिली मिस्टेक आपने की है या फिर जो स्ट्रेटजी आपने अप्लाई की, दोनों 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 शेयर करो तो दोनों लोगों को पता चलेगा, तो एटलीस्ट दे विल गेट द बेनिफिट फ्रॉम योर सजेशन। यस, बेसिकली सिर्फ 2 से 3 चीजें जो दिमाग में रखे तो कोई भी एस्पिरेंट एग्जाम क्लियर कर सकता है। ओके, फर्स्टली तो कंसिस्टेंसी रहना चाहिए, वाओ दैट्स ग्रेट पॉइंट। फिर डिसिप्लिन, ठीक है। फिर बाद में जैसे फंडामेंटल्स क्लियर हुए उसके बाद में मॉक्स देना चालू किया। So, hello everyone, welcome to Maneuver, our one more podcast session. So, as you know, कि basically इस podcast session में we will try to understand with our topper कि what was their strategy, किस way में उन्होंने preparation start किया, कभी start किया, and each and everything we will try to discuss. So, today we have Sapna Leal, and she's our offline student from the Borivali student. So, we will try to understand everything. So, first of all, congratulations for your marks, Sapna. Thank you, sir. So when you saw your result, so what was your expectation and what was your feeling basically? Actually, I was expecting more like a 123 or 124 score, but Okay. It was due to silly mistakes. I scored less. Okay. What was that silly mistake? So if you will share, so that will be also beneficial for the other student. Like 2 to 3 questions where one was that Bipendri Pal wala Everest पे सीमा नहीं था ना, पाल था उसका आंसर ऐसे। अच्छा, क्वेश्चन भी लेके Yeah, आए। I have written first person to climb Mount Everest was Pal, na? हाँ, बचेंद्री पाल। And I marked Chima. Okay. Then at one question was Novavax, like it was related to COVID-19, and I marked monkeypox. हाँ, कौन से शिफ्ट में था आपका एग्जाम? First day, second shift. फर्स्ट डे सेकंड शिफ्ट। मेरा शिफ्ट था फर्स्ट डे फर्स्ट शिफ्ट था। आपने एनालिसिस भी शायद से देखा होगा। हाँ देखा था। Okay. So basically, in this podcast session, Sapna, we will try to understand everything, your preparation strategy, and कभी आपने start किया, and what was difficult section, easy section, and how was the exam, each and everything. So now here you are part of podcast. So first of all, how you are feeling? I'm happy that I have watched your podcast from last year only when I started preparing. So I wanted to be a part of it since then. Now you are. Yes. Now you are a part of podcast. So बहुत सारे स्टूडेंट आपको देखेंगे इन फ्यूचर, अपकमिंग ईयर में जो भी प्रिपरेशंस कर रहे हैं लॉ सीडी 3 इयर्स के लिए, so they will get some idea from your preparation strategy. So one by one, we will try to understand when you started your preparation for this exam. It was when actually I decided that I will give law CET 3 years back in my 12th standard, and I was preparing like slowly for logic and reasoning questions from first and second year of my graduation, and final year I joined your classes, Maneuver Borivali branch. Last year, yeah, May or June it was started offline lectures. So थोड़ा सा आपके स्कूलिंग के बारे में ब्रीफ शेयर कर दो about your educational background. I have done my schooling from Gorai Borivali, and I scored 88% in 10th standard. Then I opted for science. Yeah, I was from science in my junior college, and later, but I lost interest in science. Then I decided, like I researched for a month or two while preparing for my 12th science boards. No, I don't want science. I want anything else, like arts. Commerce was not an option. It was either science or arts. So I done my graduation in arts recently. Yeah. So any specific reason to choose law as a career? Yeah, like it was 1 to 2 incidents in my life that I, from others, like not my personally, I saw people struggling that they don't even know their own rights. Okay. Yeah, so I was like, no, it is written in the constitution, and the government helps you to just enforce your law, and you can do what is right. So I thought maybe I was from beginning only, I was genuine to help people. Okay. And yeah, so law was only option that I can
it was like, for me it was only option that I can debate well, and I can do justice for the right people and for myself also. So great idea to help people and to spread the awareness about the law. So that is a great idea. Hope so कि जो भी आप प्लान कर रहे हो सो सक्सेसफुली इसको इम्प्लीमेंट भी कर पाओ, सो काफी लोगों का बेनिफिट भी होगा, स्पेशली क्योंकि मोस्ट ऑफ द पीपल आर नॉट अबाउट देयर फंडामेंटल राइट्स। उनको yeah sir, many people, most of the people don't know even their basic rights. हाँ, तो लॉ तो ठीक है, एक अलग अलग लीगल राइट्स और भी बहुत सारे प्रॉपर्टी के राइट्स एंड और पुलिस के केसेस, ऐसे बहुत सारे चीजें होते हैं, बट देयर इज अ सम फंडामेंटल राइट्स जो कि सबको एटलीस्ट पता होना चाहिए कि दीज आर आवर फंडामेंटल राइट्स, एजुकेशन से लेकर के फ्रीडम ऑफ स्पीच से लेकर एवरीथिंग। ओके, सो एज यू सेड कि आपने थोड़ा थोड़ा पहले ही प्रिपरेशन स्टार्ट कर लिया था, 1-2 साल पहले ही। सो फाइनली व्हेन स्टार्टेड, इट मींस सीरियस प्रिपरेशन कभी से स्टार्ट किया, एंड व्हाट वाज योर डेली शेड्यूल बेसिकली? कॉलेज भी था और प्रिपरेशन भी था। Yeah, so college was like 4 to 5 hours daily. I used to travel from Borivali to Andheri, so half of my day was engaged in college. Later on, and I took tuitions for that time also. Like last November till I took tuitions as well, so I didn't got proper time for my preparation. I studied for maybe 1 or 2 hours daily. And then I started thorough preparation from December last year, like for 3 to 4 hours daily. And in later month, like in March and April, it was like reached 6 to 8 hours, maybe 10 hours. It means लास्ट जब एग्जाम के बिफोर जस्ट मतलब 1 महीने पहले ऐसा बात कर रहे हो, तो भी 10 आवर्स आपने इंक्रीज कर दिया। हाँ, ओके ओके, बट डिसेंट अगर कोई प्रिपरेशन करे 2 to 3 आवर्स, अगर से 6 मंथ 9 मंथ, अगर से 1 साल पहले से प्रिपरेशन स्टार्ट कर लिया है और 2 to 3 आवर्स दे इसके प्रिपरेशन के लिए, तो आई थिंक इट्स इनफ फॉर दिस एग्जाम। yeah sir, it is enough. आप कॉलेज के साथ और भी चीजों को मैनेज करके आराम से इसको कर सकते हो। सो नाउ कम टू द सेक्शन पार्ट। एज वी नो कि देयर इज अ 4 सेक्शन, लीगल है, इंग्लिश है, जीके है, एंड देयर इज अ रीजनिंग सेक्शन, करेक्ट? So as a section wise preparation, so which one was the difficult section for you, which one was the easy, and how you prepared for it? It was very easy for me to solve legal questions. Okay. Legal aptitude and logical reasoning was my topmost priority and most important part, that I don't want to lose my marks in that. I was scared very much about GK and English, in which I have lost marks basically. As you mentioned 3 क्वेश्चन कैसे ही चले गए। हाँ, लीगल में भी एक क्वेश्चन रॉन्ग हुआ था, लाइक वो वाला कि दिस इज नॉट अ नेचुरल गार्डन फॉर अ वुमन, एंड ऑप्शंस वर मदर, फादर, अंकल and husband, and I ticked husband, but it was uncle as an answer, that uncle is not a natural guardian for a woman. चलो, आपको सारे क्वेश्चन भी याद है। Yeah sir, after my results I genuinely like cried for 2 to 3 hours continuously, that I was expecting, and because of my silly mistakes. I could have scored more, like 123 or 120. So in other section, as you mentioned कि ठीक था आपका, but GK sections was थोड़ा सा lengthy and difficult था, so what was your strategy for the GK? GK, I watched your current affair videos which were put on the portal, and yeah, that strategy videos as well helped me a lot. Like yeah, this section has this much weightage. Right. Yeah, UN organizations I by-hearted, so I didn't mark them as wrong answers, but somehow I managed to like. So जो एरिया बेसिकली मैंने स्ट्रेटजी सेशन में दिया था कि इस सेक्शन से पर्टिकुलर 2 क्वेश्चन, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से 1 क्वेश्चन, स्पोर्ट्स सेक्शन से 2 क्वेश्चन, सो एग्जाम में वैसा था क्या? हाँ सर, बिल्कुल था वैसे। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस लाइक 30 में से 15 to 20 क्वेश्चंस तो ऐसे थे जो डायरेक्टली करवाए हुए थे यहाँ से। करेक्ट। इट मींस वो जो सेशन थे स्ट्रेटजी के सेशन और भी जो आप लोगों को प्रोवाइड किया गया था वो हेल्पफुल था। नाउ वी आर कमिंग टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये तो सेक्शन हो गया, प्रिपरेशन शेड्यूल हो गया। देन इंपॉर्टेंस ऑफ मॉक टेस्ट फॉर this exam. It means appear the actual exam and get a good marks in exam. So what is the role of mock test? मॉक टेस्ट तो मतलब इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट है, मॉक टेस्ट के बिना एग्जाम लिखने गए तो मतलब
हो गया कि क्लियर नहीं होने वाला है. Right. Last year, before even starting my preparation, like actual reading books or studying, making notes, I just first gave a mock, full length mock, and I just scored 46, I guess, 36 or 46. Oh, 46. Last year in June or July, yeah. Then my brother and of course classes guidance helped me a lot. Time strategy management, like which section you must take first, then second, yeah. तो बेसिकली यहाँ पे कुछ पॉइंट मैं मेंशन करूंगा कि मॉक टेस्ट के लिए कि देखो कैसा होता है, देयर इज अ टू थिंग. एक तो इम्पोर्टेंट पार्ट है मॉक टेस्ट अपियरिंग के लिए कि आपके पास नॉलेज एंड स्किल हो, जैसे रीजनिंग है, इंग्लिश है, व्हाटएवर जो भी सब्जेक्ट है उससे रिलेटेड आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो, और उसके बाद उससे रिलेटेड नॉलेज हो. अगर नॉलेज ही नहीं है तो फिर मॉक टेस्ट अपियर करके कुछ मीनिंग नहीं है. सेकेंड आता है कि आफ्टर क्लियरिंग द बेसिक एंड योर कॉन्सेप्ट, इफ योर कॉन्सेप्ट इज क्लियर, यू नो हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चन, इंग्लिश, रीजनिंग, व्हाटएवर, देन मॉक टेस्ट विल हेल्प यू टू मैनेज द टाइम, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है. क्योंकि आपके पास जितना भी नॉलेज रहेगा, जो भी व्यूअर्स इसको देख रहे हैं उनके लिए गाइडेंस है मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस लास्ट 6-7 ईयर से रहा इस टीचिंग फील्ड में एंड कॉम्पिटिटिव फील्ड में. सो एक तो होता है बेसिक अंडरस्टैंडिंग, नॉलेज आपके पास हो जाना चाहिए. उसके बाद बेसिक अंडरस्टैंडिंग के बाद अगर से आप मॉक अपीयर नहीं करते हो, टाइम मैनेजमेंट नहीं करते हो, तो कितना अच्छा भी नॉलेज रहे आप एग्जाम में एकदम ब्लैंक हो जाओगे, नहीं कर सकते. लास्ट ईयर जैसे मैंने मॉक दिया था तब मेरा बेसिक नॉलेज इतना नहीं था. लाइक आई wanted to know that where do I stand basically. So it was like 30 to 40 marks. I have to score 120 plus for GLC. Okay. So yeah, then later on I covered up my basics from whenever books and portal videos were like एकदम basic. Like till 10th अगर किसी को कुछ भी बेसिक नहीं हो तो वीडियो लेक्चर्स हेल्प करता है काफी. Then for medium to average you have to prepare, then books were enough, more than enough. Like right, which means जो मेन्यूवर की बुक है it's enough for the preparation of the law. Yeah, और हाँ मैंने e-books भी यूज नहीं किए ज्यादा कि कैसे I wanted to keep limited sources, like नेट पे से भी पढ़ लिया, ये भी कर लिया, वो भी कर लिया, इतना नहीं करना था. Right. जो पढ़ा है उसको बार बार रिवाइज करके वो कर लो तो ही काफी है. ओके, तो काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट आप मेंशन कर रहे हो. सो एनी टिप्स फ्रॉम योर एंड फॉर द एस्पिरेंट दोज हु आर गोइंग टू अपीयर द नेक्स्ट ईयर, जो सीली मिस्टेक आपने की है या फिर जो स्ट्रेटजी आपने अप्लाई की, दोनों शेयर करो तो दोनों लोगों को पता चलेगा, तो एटलीस्ट दे विल गेट द बेनिफिट फ्रॉम योर सजेशन. यस, बेसिकली सिर्फ 2 से 3 चीजें जो दिमाग में रखे तो कोई भी एस्पिरेंट एग्जाम क्लियर कर सकता है. ओके, फर्स्टली तो कंसिस्टेंसी रहना चाहिए. वाओ, दैट्स ग्रेट पॉइंट. फिर डिसिप्लिन. ठीक है, कि समझो एक दिन ऐसा नहीं है कि सबका एक ना एक दिन तो छूटता ही है, ऐसा नहीं है कि सब कंटिन्यूअसली मेहनत कर रहे हैं. ब्रेक भी जरूरी है, 1 या 2 दिन ब्रेक लिया, लेकिन लेटर ऑन यू हैव टू गेट ऑन द ट्रैक, राइट. हाँ, फिर बाद में जैसे फंडामेंटल्स क्लियर हुए उसके बाद में मॉक्स देना चालू किया. मॉक्स के स्कोर इम्प्रूव करना भी बहुत डिफिकल्ट था. लाइक कि मैन्यूअर के मॉक्स में तो डिफिकल्टी लेवल 1 स्टेप अहेड था. उसमें मुझे 90 to 100 I didn't score like 114 104 was the highest I guess in my manure. Yeah. But I took another test series as well, like for full length I opted for 34 to 35 mock test overall full length. तो टोटल इंस्टेड ऑफ मैन्यूवर का देने के बाद भी आपने टोटल 35 मॉक अपीयर किया था? हाँ, इंक्लूडिंग मैन्यूवर मतलब मैन्यूवर के कितने थे? 20 थे. ओके. Yeah, 10 to 15 I get from another source. So I gave that, and later on that I tried to score more as much as possible. Like कहाँ मिस्टेक हो रही है, क्या गलती हो रही है, कौन सी रिपीटेटिव मिस्टेक्स है जो मैं कर रही हूँ, और कौन से ऐसे बेसिक टॉपिक्स है जो मतलब कंपलसरी है कि ये इतने साल प्रीवियस ईयर पेपर्स से आए, मतलब ऑब्वियसली आने वाले वो टॉपिक्स है. Okay, anything else? No sir, that much. It's okay. Okay. So काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने मेंशन किया. जो फर्स्ट आपका पॉइंट था, कंसिस्टेंसी होनी चाहिए. कंसिस्टेंसी इज द की ऑफ सक्सेस जो बोला जाता है, काफी इंपॉर्टेंट है. किसी भी एग्जाम का कोई प्रिपरेशन कर रहा है तो कंसिस्टेंसी मेंटेन करना इंपॉर्टेंट है. सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग आई विल मेंशन कि बेसिक अंडरस्टैंडिंग सब्जेक्ट रिलेटेड होनी चाहिए. जो भी एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हो, जितने भी सेक्शन है उसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए. आफ्टर दैट यू हैव टू लर्न द कॉन्सेप्ट एंड यू हैव टू इंक्रीज द
knowledge and then you have to, it means स्टूडेंट को लर्न करना चाहिए शॉर्टकट मैथड. देन रोल होता है मॉक टेस्ट का, एंड मॉक टेस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू इंक्रीज योर स्पीड एंड टाइम मैनेजमेंट. किसी को कितना भी अच्छा नॉलेज रहे, कुछ भी बेसिक क्लियर है, इट मींस यू आर अवेयर अबाउट द सब्जेक्ट, यू आर अवेयर अबाउट टाइप ऑफ द क्वेश्चन, बट अगर से आपने मॉक अपीयर नहीं किया है तो एग्जाम में काफी डिफिकल्टी हो जाती है उसको क्रैक करने के लिए. yes, और मेनली यही था मॉक टेस्ट. जैसे मैंने हर एक टाइम पे कि मेरा स्लॉट कभी भी आ सकता है, तो मैंने हर टाइम पे मॉक दिए हुए. मॉर्निंग में भी दिया है, आफ्टरनून में भी दिया है, इवनिंग में भी दिया है. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने मेंशन किया. हाँ, मैं बेसिकली जैसे ही फंडामेंटल सिलेबस वाला, एक सिलेबस कभी ऐसे तो है ही नहीं कि खत्म होगा, कि पढ़ते जाओ या फिर ऐसे ये बाकी रह गया, ये पढ़ने के बाद में सब यही सोचते हैं कि मैं ये मेरा सिलेबस होगा फिर मैं टेस्ट चालू करूंगा. बट ऐसे नहीं है. लाइक you have to start once it is time. Like एक proper time आ गया कि इतना time बचा है 90 days और like at least 50 days before you should start giving mocks on alternative basis. Revision and mocks help me a lot. Okay. ये पॉइंट मैं मेंशन करूंगा अपने स्टूडेंट को कि एटलीस्ट शिफ्ट के अकॉर्डिंग दे शुड टू ट्राई द मॉक. एटलीस्ट देखो कि मॉर्निंग में आपका स्कोर क्या रहा है, इवनिंग में कभी इवनिंग में ट्राई करो. कभी ऐसा होता है कि आफ्टरनून या इवनिंग टाइम में थोड़ा सा लेजीनेस आ जाता है तो माइंड उतना अच्छा वर्क नहीं करता, तो उस टाइम और मॉर्निंग टाइम के स्कोर में क्या डिफरेंट है, एंड ईच टाइम के अकॉर्डिंग अपने आप को प्रिपेयर करके रखो तो ज्यादा बेटर है. ये काफी न्यू पॉइंट आपने ऐड किया यहाँ पे. Yes, this is not just मतलब मेरा ओपिनियन नहीं है, ये मेरे भाई है, उसने मुझे प्रॉपर एकदम गाइड किया था. उसके हेल्प वाइज मैं फॉलो कर रही थी. किसका? मेरे भाई का, बड़े भाई. आपके ब्रदर ने आपको गाइड किया था. वो क्या करते हैं बेसिकली? यूपीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहा है. He is preparing for UPSC. Yes. Oh, great. Okay, Sapna, thanks to come here and share your experience with our viewers. जो भी देख रहे हैं, जो भी स्टूडेंट देख रहे हैं, तो definitely they will get the benefit from this conversation, this podcast. So wish you all the best for your career, and जो आप aim लेके चल रहे हो काफी अच्छा है, to spread the awareness about the law, legal rights के बारे में. So thanks to coming here and share your experience. Thank you, sir. It was pleasure. Yeah. Okay.